Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तीनों श्लोक में कोई भी तात्पर्य नहीं था जी। एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन प्रभु। वैजी माता जी कुछ कहना चाहती। वैजी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। एक्सेलेंट लेक्चर प्रभु जी। जैसे आप गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल नो purports, but you explained so many things प्रभु जी। थोड़ा takeaways for me was, आप first most important point, जो भी अवतार भगवान का है वो दिव्य अवतार है। एंड आपने you also mentioned that Arjun asks Bhagwan from the Lord एक mantra which will discuss all the avatars and equivalent to the Ashwamedha Yajna. O Matsya, Kurmava, Madhavam, Madhusudana, Vanamali, Govardhanam, Rishikesham, and you ended it with Pratakale, then Pramuchyate. Prabhuji, I just wanted, iska source kya hai, because I could just get Ramayanam, Hari, Ananta, Krishna, Ashwamedha, Yasya cha Amanyaham, Sandhya Kale. Itna hi mujhe, I got from what you said, Prabhuji. If you can share the source so that I can understand the full shloka, would really appreciate that, Prabhuji. Ek wo point. दूसरा, I've been, whenever I get the chance, I always listen to your lectures. मुझे, one habit that I learned from you, Prabhu ji, जो कुछ हम numbers को देखते हैं ना, you immediately connect it, somewhere with Bhagavatam. And मुझे बार-बार sometimes, when the numbers flash, यहाँ भी, 11, 12, 13, आपने, so when the numbers flash in front of us, somehow, even in our material life, we can actually connect it to Bhagavatam or something spiritual. That's something that really admire, Prabhuji. And up again, you quoted 5.29. Yaha, that Bhagwan is the enjoyer of all sacrifices, Bhoktaram, Yajna, Tapasam, and made a comparison between how, demons, bautic desires ko fulfill karne ke liye demigods ko approach karte hai, whereas Vaishnavas, they pray to Vishnu ya Krishna for, to remember him always, uska serve karne ke liye, and for the benefit of entire humankind. And apne ye bhi, you explained how, when Hiranyaksha and Hiranyakashipu took birth, itna, they were, what to say, complete amangal environment. Prabhuji, I thought I will just share what I, kind of read. So, Sri Sampradaya mein, Ramanujacharya ka, there is a disciple, Swami Desigar, who established the Badagala Iyengar Sampradayam, and he's written a shloka called Dasavatara Stotram. The fourth slokam is actually about, Varaha Bhagwan. It goes like this. Gopa ye Danisham Jaganti Kohana Potri Pavitri Krita Brahmandaha Pralayormi Gosha Gurubihi Gona Rave Gurguraihi Yed Damstram Kara Koti Gata Gatana Nishkampa Nityastitihi Brahmastamba Asau Daso Bhagavati Musteva Vishwambara. So, यहाँ one point, जो कुछ भगवान का अवतार है, it is दिव्य अवतार, and ये the summary में, the meaning of this loka is, may Varaha Perumal protect all the worlds and their beings always. यहाँ वो दिव्य का, I just wanted to connect that. जब भगवान, so इस meaning का explanation, Swami Desikar says that जब भगवान, when he entered
the ocean to bring Bhuma Devi up, वो sound आ रहा था उसका nostril से, gur gur करके एक sound आ रहा था. And in fact, this sound was, could even be heard beyond the waves of the ocean. And this sound actually purified the entire world. So jaise, Asurgan ka, when they take birth, you have all these inauspicious signs, and Bhagwan jo kuch form lete hai, we see that there are, auspiciousness and goodness that actually get displayed. And Prabhuji, मुझे I also Chaitanya Bhagavat में there is a description how एक बार Chaitanya Mahaprabhu when he was hearing the glories of Lord Varaha, he kind of got into the mood, and Sukara keh ke he enters the house of Murari Gupta, and वहाँ there is a water pot. And he actually takes the water pot just like Lord Varaha. And then he tells the devotees there, you probably doubted me in the past, but now you see who I am. So Chaitanya Mahaprabhu actually took the form of Lord Varaha there. And then Prabhuji, a point I wanted to add, this is Bhakti Vedanta Book Trust, when they inquired from Prabhupada ji, कैसे हम Lord Varaha को present करते हैं. So what happened was, Bhagavatam में, I think इसका description ये है कि he has 4 hoofs. पर Prabhupada ji ने कहा, जैसे मंदिर में, for example, I think Sarvadev Girdhari Prabhu, in his lecture, he actually mentioned that there is a place called Tiruvada Iyandai in near Mahabalipuram, and I had the opportunity to visit that temple also a few times. वहाँ भू वराह या नित्य कल्याण पेरुमाल का statue is also a Divya Desam. So वहाँ the depiction is with 2 hands and 2 hoofs. So Prabhupada ji also said that the Lord should be depicted in that way rather than with the 4 hoofs. And when the when the devotees were asking so Lord Varaha is a boar and how can he be attractive, but Prabhupada said that Lord Varaha is very beautiful, very attractive, इसको ऐसे ही depict करना चाहिए. Prabhuji, एक और question that I had. So this is more like, we can relate it to our daily life. I would like to hear your thoughts on that, Prabhuji. So Hiranyaksha was reluctant to take back the weapon from the Lord. Is it because इसका ego के वजह से, या 2.62 में contemplation से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसके वजह से होता है प्रभु जी? What would your take be on that? Why did he behave that way? Why is it that, because normally generally अगर बीच में लड़ाई हो रहा है, what happens is, I always felt that if the opposite party shows kindness, then immediately हमारा, because anger से anger बढ़ता ही जाता है. But if the response is actually kindness, thoda, people come down, utna aggressive, they don't show that aggression. So yaha, I just want to understand, jab Bhagwan actually is telling him, take back your mace. Is there any, meaning here? Why did he not take it back? Is Asuric Gun is because of the false ego? Yeah, completely, Buddhi Nashat Pranashyati. If you can share some thoughts on that, Prabhuji, would really appreciate that. But once again, thank you so much. Excellent lecture, Prabhuji. Done with Pranam. Hare Krishna Mataji, is a wonderful explanation you also gave us, and wonderful different examples, and wonderful and related to this Varaha Bhagwan ke avatar ke antargat. Well, I don't have much to say about this because he was Hiranyaksha was असुर प्रवृत्ति के थे और वही अपने आप को शक्तिशाली मानते थे. और इसमें सिंपली I can say विनाश वाले विपरीत बुद्धि, विनाश वाले विपरीत बुद्धि जब भगवान उसे दे रहे हैं अवसर, और वो एक उठाने के लिए, लेकिन वो नहीं उठाता है, तो उसमें if we can read again and again 17th and 18th chapter, probably I think श्रीमद् भागवतम को बार बार पढ़ने से ही I think
we can find out a correct, bona fide answer. राधा राजा शुद्ध देर में विनाश काले विपरीत बुद्धि. तो यही मेरा कहना है. कोई मेरे प्रभु कुछ शेयर कर पाएंगे इस विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी. Correct. इसमें भाव ये है, जैसे माता जी पूछ रही क्या है, तो एक्चुअली वी कैन से भगवान जो है जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं. जैसे कोई छोटा, मतलब ही इज सो पावरफुल डेमन, इतना शक्तिशाली है, और जैसे उसका जो सबसे शक्तिशाली जो उसका अस्त्र है वो उससे मार रहा है, और भगवान बच्चे की तरह, मतलब राइट हाथ या लेफ्ट हाथ भी नहीं, लेफ्ट पांव से उसको बस ऐसे टक से उसको साइड में कर देता है, और वही जो उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, उसका पूरी ताकत से उसने जो फेंका है, भगवान उसको मतलब हाथ भी नहीं लगा रहे, पांव से उसको टक से ऐसे साइड में कर देते हैं. तो विच इज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर ए योद्धा. जब फाइट चल रहा है और कोई पूरा ताकत से उसको समझो पंच मारे, और वो ऐसे ही लेफ्ट हैंड से बस ऐसे, या लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से उसको सब बाजू में कर दे, तो हाउ ह्यूमिलेटेड ही विल फील. तो वैसे ही भगवान जो है, एंड दैट्स व्हाई ही वाज हेजिटेंट, बोला अरे बाप रे, सो पावरफुल, वेदर आई शुड टेक दिस और नॉट. सो दैट इज द रीजन ही वाज हेजिटेंट, बोला कि मैं मतलब आई विल नॉट टेक दैट. एंड स्टिल जो है उसका जो एज यू सेड माता जी, उसका ईगो तो है ही है. बिकॉज ऑफ दिस ईगो आई एम सो पावरफुल, आई एम सच अ ह्यूज पर्सनालिटी, इतना मेरा शक्ति है, बट ही हैज डिफीटेड मी सो बैडली, एंड आउट ऑफ दैट ही इज थिंकिंग लाइक दिस. हरे कृष्ण. इसमें एक विशेष बात और भी मुझे याद आई अभी, कि वैसे असुर प्रवृत्ति वाले के अंदर विभिन्न जो है अलग ही विचार आते हैं. मतलब तो उसने ये भी सोचा होगा कि क्या पता मैं अपना गदा उठाने के लिए झुकूं तो कहीं भगवान मुझे से पीछे से प्रहार नहीं कर दे, लेकिन ऐसी कोई संभावना तो थी नहीं. और भगवान तो अपने जो वास्तविक जो रेगुलेशंस हैं रहने के हैं क्या, उन पे चलने वाले थे. लेकिन उसके मन में ये विचार भी आया होगा कि मैं उठाऊंगा, तो एक तो उसको प्राउड था, गर्व था अपनी शक्ति के ऊपर. दूसरी बात ये भी हो सकती है. हरे कृष्णा. नहीं, दिस इज स्पेकुलेशन. एक्चुअली दोनों में धर्म युद्ध चल रहा था, और जैसे वो तो असुर होते हुए उसने धर्म युद्ध का पालन किया था, कि जब मतलब भगवान का अस्त्र गिर गया था तो उसने भी अपना अस्त्र डाल दिया था. तो वैसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है. ये आजकल के जमाने में कलयुग के जो लोग हैं जी वो लोग करते हैं, वैसा नहीं है. बट ही वाज ह्यूमिलेटेड, थॉरली ह्यूमिलेटेड. जैसे if somebody thinks he is very very powerful, और कोई उसको छोटे चींटी की तरह उसको मसल दे, तो उसका कितना इंसल्ट होगा उसका. तो all his ego was crushed, and that's why he is not ready to take that weapon. Hare Krishna. And one more, actually, we remember about this narration, the wonderful devotee of the Lord, and at the same time the fighting between the Lord and the Vratasur. Vratasur का जो वर्णन हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो भी जो है इस वेरी मच रोमांच से भरा हुआ है पूरा. हरे कृष्णा. ठीक है. ओके वजी माता जी. Yes, Prabhuji, thank you. Thank you very much. Prabhuji, I just wanted Sridham Prabhuji say the source of the mantra. If we can share that Matsya Kurma, that mantra, Prabhuji. I got that mantra. I can share that, but the source is not given. And similar verse to that is, but that is not full. What Prabhu quoted was something different.
all the 10 avatars are there. That is from Skanda Puran, 5th canto, 3rd something. That is a different verse, but starting like the same thing. Matsya, Kurma, Varaha. But what Prabhu quoted is something different. I can share the verse, but source is not given. Maybe we'll check with Prabhu only. Sure, Prabhuji. Sridham Prabhu ji. Hare Krishna. Actually, Hare Krishna. Just a minute. I just open the camera. ये मंत्र जो है from the many years actually I am reciting, and it was I got it in during my more than when I was quite young, 15-20 years. मेरे ननिहाल में ये मेरे को श्लोक मिला था और मुझे कहा गया था, I didn't actually found the source, but it was told it's from Matsya Puran, something like that. Matsyam kurmo maraham shavam nandanadhanam. And ever since lots of different names are there and wonderful names, it is one of my favorite shloka, and I keep reciting every day. But the original source we have to find out. But as per what I was told, it's from Matsya Puran, और मत्स्य पुराण में ढूंढना पड़ेगा. हरे कृष्णा. या मैंने चैट में वो श्लोक शेयर कर दिया है, वो मंत्र शेयर कर दिया है. अच्छा. उसमें ये कहा है कि सहस्त्र कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है, सारे पाप नष्ट होते हैं, और अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है, गोमेध यज्ञ करने का 100 अश्वमेध यज्ञ और 1 करोड़ गोदान करने का फल प्राप्त होता है. ऐसा बहुत सारा इसका बेनिफिट दिया है. वो श्लोक है बट इसका सोर्स नहीं है. तो we'll try to find out. 2 बातें और भी विशेष कही गई है कि संध्या काले मध्याह्ने जप नित्यम, त्रिकाल संध्या में जप करना, और पूर्णमासी एकादशिया और अमावस्या के अंदर भी इसका जप करने का विशेष महत्व है. तो ऐसे कई ऐसे अनेक श्लोकास हैं, लेकिन आजकल को हमें जो अपने गुरु परंपरा के अंतर्गत मिला है हरे कृष्णा महामंत्र, वो है आजकल पर्याप्त है. वैसे देखा जाए तो अपने पुराणों में और अन्य कई वेदों में ऐसे मंत्र कहीं मिलते हैं जिसमें that similar benefits are narrated. So that is my actually view. या ओके, हम लोग इसका और भी कुछ थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं to get something. हरे कृष्णा. विनती माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम टू एवरीवन. प्रभु जी, एक मुझे ये वराह अवतार के उसमें एक चीज याद आई कि ये जो घास होती है, दुर्वा घास, ये कहते हैं कि वराह अवतार में ही जब भगवान के जो बाल थे, जो उस अवतार में वो उनके जो बाल गिरे वो ये घास है. तो इसका क्या भागवतम में अभी आएगा आगे उल्लेख, या इसके बारे में अगर डिटेल में आप बता सकते हैं तो. हरे कृष्णा. आई अपोलोजाइज, इसके बारे में मुझे ऐसे कुछ इसमें विशेष ज्ञान नहीं है और इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से मैं कुछ नहीं कर सकता. So really back to apologized. या मुझे भी नहीं पता इसके बारे में. इवन आई डोंट नो इफ समबडी एल्स हरे कृष्णा प्रभु. यस सूरत माता प्रभु. हरे कृष्णा. या प्रभु, एक्चुअली जो माता जी ने कहा है वो मतलब मैंने भी एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था. सो वो बताते हैं कि जब लॉर्ड धरती माता को फर्स्ट टाइम, अभी 2 टाइम आए थे ना वराह. सो फर्स्ट जो श्वेत वराह जब आए थे तो धरती माता को जब लेके आते पानी से, वो अपने जैसे हम लोग स्नान करके आके अपने शरीर को कभी कभी ये करते ना, वी शेक आवर बॉडी, तो उस तरह से जब वो शेक करते तभी पानी के छिलके अप टू ब्रह्मलोक तक गिरे थे उनके दिव्य शरीर से, और कुछ बाल गिरे थे. सो वो जो है आरती के बाद जो सब पे पानी छिड़कते हैं लॉर्ड को ऑफर करने के बाद, इट इज कंसिडर्ड लाइक वही जो उतना वेरी ऑस्पिशियस वो है. और सेकंड, उनके बाल से वो कुशाग्रास हुआ था.
जो उनके बाल गिरे थे ना, दैट वाज द कुशाग्रास व्हिच इज ऑल ऑस्पिशियस। हम लोग तो हमेशा यज्ञ में जो यूज करते हैं ना, तो जस्ट जब उन्होंने अपना शरीर को ऐसा झटका था पानी से बाहर निकलने के बाद, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, तो दैट वाज द मतलब पानी जो है दैट इज दैट ऑस्पिशियस वाटर अप टू ब्रह्मलोक का गया था, और बाल जहाँ गिरे थे वो कुशाग्रास हुआ था। जस्ट प्रभु ऐसा शास्त्र जस्ट शेयर करें। हरे कृष्णा। वो धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। सुरत माता प्रभु की जय। जय प्रभु शिला प्रभुपाद की जय। बस जो सुना था वो आपने एक परंपरा में, तो वही शेयर किया ब्रो। और विष्णु प्रभुपाद है आप जिससे वरिष्ठ भक्त हूँ। प्रभु अभी एक और क्वेश्चन आ गया दिमाग में, ये कुशाग्रास और दूर्वाघास में फर्क है क्या दोनों में? हरे कृष्ण माता जी, इस विषय में मैंने इतना चिंतन नहीं किया है, न इसी तरफ मेरा संकेत गया है, क्योंकि विशेषकर क्या होता है, क्षमा करें, जो विशेषकर जो ये कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं या कर्मकांड के विषय में अंतर्गत ये जो मतलब व्यक्तियों को विभिन्न जो है अपने अनुष्ठान करवाते हैं, क्या उनको इस बारे में विशेषकर ज्यादा मालूम है। पर मैंने विशेषकर इस बार तक ध्यान नहीं दिया कि ये जो इसमें फर्क है या क्या, तो मुझे इस बारे में इतना वो पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो क्षमा करें। या हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मैं जस्ट इसमें ऐड करना चाहता हूँ प्रभु कि दूर्वाग्रास जो है वो बिल्कुल अलग है और कुशाग्रास है बिल्कुल अलग है। दूर्वाग्रास एकदम पतला पतला होता है और छोटा छोटा होता है, छोटा मतलब लंबा होता है, लेकिन इट्स वेरी थिन। लेकिन कुशाग्रास जो है, कुशाग्रास अलग होता है। इसका आप किसी पूजा की दुकान पे चले जाएंगे तो कुशाग्रास का मैट भी मिलता है। यू सी दैट वो बहुत बड़ा होता है, थिक होता है और गोल गोल होता है। तो ऑटोमेटिकली आप जब गार्डन में जो ग्रास देखते हैं दैट इज नॉर्मल दुर्वा ग्रास, जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। और ये जो कुशाग्रास है ये हम लोग आसन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। तो इट इज बिग, लिटिल थिक एंड आप किसी पूजा की दुकान पे चले जाइए, उनको बोलिए कुशाग्रास का मुझे मैट चाहिए, तो you will be able to identify. थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता। दंडवत प्रणाम सुदाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम श्रीदाम प्रभु जी। या और किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आते रहिए। जय शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंगा की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम